حکومت قائم نہیں ہو سکتی تھی اگر اس سے پہلے یہ اتنا بڑا کھیل نہ کھیلا جائے. شام کتنی ایسی تھی, کیا رول اس کا شام, اور شام اتنا اہم نہیں ہے تو اس شام کے لیے حسین ابن علی نے زینب جیسی بہن کی بیرداری کیوں قبول کر, اپنے 22 سال کے جوان بیٹے کی تمام تر اذیتوں کو حسین ابن علی نے برداشت کیا, نہیں کہ قبول کیا, آمادہ کر کے جا رہے ہیں, آخری رخصت کے لیے خیمے میں آئے ہیں تو آ کر کے کہتے ہیں میرے لال خدا حافظ, جب واپس پلٹ کر کے وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا. امام سجاد چونک کے اٹھے, بابا آپ کی یہ کیفیت, مولانا عباس کہاں ہے, چچا کہاں ہے, علی اکبر بھیا اکبر کہاں ہے, ایک ایک کا نام پوچھتے گئے جناب امام سجاد اور امام حسین کا جواب ختم ہو گئے. قومیوں نے سہارا دے کے امام سجاد کو دینے کی کوشش ہوئی, امام ذرا مجھے سہارا دے کے بٹھائیں اور میرا عصا اور ایک تلوار مجھے دے. امام آگے بڑھے, کاندھے پہ ہاتھ رکھا, میں بیٹا کیا ارادہ ہے, اصل کیا کرو گے, تلوار کیا, بابا کیسے برداشت کرو کہ جوان بیٹا موجود ہو اور بوڑھا باپ میدان میں جا کرو. اس وقت امام نے جو کہا تھا کہ سید سجاد یہ تو چھوٹا جہاد ہے, تمہیں بڑا جہاد انجام دیا. راہ کوفہ و شام میں سید سجاد نے بڑا جہاد انجام دیا ہے, اور یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں, حسین ابن علی کا جملہ ہے. کربلا میں قتل ہو جانا چھوٹا جہاد ہے, مگر شام غریبہ سے لے کر کے کوفہ کا بازار, کوفے کا دربار, کوفے کا زندان, اور پھر کوفے سے 18 یا 19 محرم کو رہا کر کے شام کا بھیجا جانا, اور مسلسل 19 محرم سے لے کے سفر کرتے ہوئے پہلی سفر کو شام میں قافلے کا پہنچنا, اس سارے راستے کی دشواریاں ہر قدم پہ سید سجاد قتل ہوئے. آج 25 محرم کو سید سجاد تو ظاہر اس دنیا سے جا رہے ہیں. سید سجاد تو اس وقت قتل ہو گئے اس وقت پہلی بار زینب بنت چادر بازار میں آئی, جس وقت زینب تماشائیوں کے دربار میں ہے اور سید سجاد سر جھکائے کھڑے. کیوں؟ اللہ رسالت اللہ, الہی پیغام کو اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی ذمہ داری ہے. منصوبہ خدا یہ ہے کہ دین کو مٹنا نہیں ہے, تب تک آگے بڑھتے رہنا ہے جب تک کہ پورے دنیا میں اور پورے ادیان کے اوپر یہ دین غالب نہ جائے. کتنا زبردست بریک, یہ کتنی زبردست رکاوٹ ہے کہ جو درمیان میں آ رہی ہے کربلا کی صورت میں. اب اگر یہاں ذرا بھی چوک گئے حسین ابن علی یا امام سجاد یا وہ سارے لوگ جو اس کربلا کے اس مشن میں شریک ہیں, ذرا سی چوک اور سب کچھ ختم. اور یہاں کربلا کا ختم ہونے کا مطلب سمجھے, آدم کی محنت ختم, نوح کی محنت ختم, ابراہیم کی محنت ختم, موسیٰ و عیسیٰ کی زحمتیں ختم, پیغمبر کی ساری زحمتیں, سب کچھ ختم. جانا میرے لال, اس مسائل کو برداشت کرو تو اس سے بڑا جہاد کرنا ہے. حکم امام ہے, امام زین العابدین خود امام ہیں, مگر جب تک امام حسین زندہ ہیں, حسین امام سجاد کے بھی امام ہیں. اب کوئی تکلفات نہیں ہے, پھر لیٹ گئے غش کی حالت میں. یہ ہو نہیں سکتا, بیٹا دیکھ رہا ہو مکلف ہو جائے گا, باپ آواز دے رہا ہو کیسے چپ رہیں گے, لہذا غش کی حالت میں آنکھ کھلی, امامت کا پہلا موقع, ایک منظر دیکھا ہے, ایک جملہ سنا. منظر کیا دیکھا؟ اپنی امامت شروع ہو رہی ہے, اپنی امامت میں پہلی بار آنکھ کھلی ہے, دیکھا کیا ہے؟ جلتے ہوئے خیمے. آواز کون سی سنی ہے؟ الا قد قتل الحسین بکربلا. کسی نے ایسی امامت شروع کی ہے, یہ امام سجاد ہے جس کی امامت کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. توجہ کریے. اور بالآخر وہ امام بہت حسن, بڑی خوبصورتی, بڑی کامیابی کے ساتھ ان سارے مارکے کو ظلم برداشت کیے ہیں, قربانیاں کی ہیں, تازیانے کھائے ہیں, کانٹوں میں چلے ہیں, مذاق نہیں ہے, بھوک و پیاس برداشت کی ہے,
बड़ी खूबसूरती और हुस्न के साथ इस पूरे मार्के से करबला को बचा करके और दीन मोहम्मदी को शाम तक पहुंचा करके वापस मदीने आए हैं। और अब वो ज़माना आ गया है कि अब्दुल मलिक इब्न मरवान के ज़रिए से जहर भेजा जाता है इमाम को, इमाम को जहर दिलवा दिया जाता है। जहर इतना कारी है, इतना शदीद है कि चंद दीवाने दहन में गए हैं और मन मुतगय्यर हो गया। इमाम पूरी तरह से तड़पना शुरू करते हैं। सारे घर के लोग इकट्ठा हो गए, इमाम बाकी करीब आ गए। बाकी जितने लोग हैं वो बिस्तर के करीब, बाबा खैरियत क्या हुआ है? एक उल्टी होती है, कह आती है और उसमें खून गिरना शुरू होता है। सब ये समझ गए कि मौला को जहर दिया जा चुका। हुसैन इब्न अली का सबसे बड़ा आज़ादार इस दुनिया से जा रहा है। सुनेंगे ये सब के बावजूद करबला किस हद तक रूह में उतरी है। इमाम सज्जाद के जुमला सुने, कहते हैं यहाँ तक कि तड़पते तड़पते कई घंटे गुजर गए। अब वो वक्त आ गया कि अब रूह इस बदन से निकलने वाली है। अब इस बदन से रूह निकलने वाली है। अचानक आंख खोलते हैं और आंख खोल करके इमाम बाक़िर को इशारा करते हैं, कहते बेटा बाक़िर जरा मेरे करीब आओ। इमाम मोहम्मद बाक़िर करीब आए, बाबा कुछ कहना चाहते हैं। ज़ौफ़ इतना है, नकाहत इतनी है, कमज़ोरी इतनी है, आवाज़ तेज नहीं निकल रही। अपने कानों को बहा के लबों के करीब लाए, बाबा कहीं कुछ कहना है? का मेरे लाल एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। बाबा कहे कौन सी ख्वाहिश है? का मेरे लाल मेरी ये ख्वाहिश है, एक तमन्ना है और वो तमन्ना ये है कि मेरे जिस्म को बिस्तर से उठाओ, तख्त से उठाओ, मुझे जमीन पर लिटा दो। इमाम तख्त पे बिस्तर है, उसके ऊपर इमाम को लिटाया गया है। अब ये बड़ी अजीब फरमाइश है। वक्त या फिर कोई ऐसी फरमाइश करता है? और वो भी कोई बेटा बागैरत ये बर्दाश्त करेगा? हर बेटा खुदा न करेगा उसके बाप का साया सर से उठ रहा है और वो आखिरी लम्हात में बाप के पास मौजूद है सरहाने। तो हर मेहनतदार बेटा ये चाहता है कि इस वक्त अपने बाप को जितना आराम पहुंचा सकते हो पहुंचाते हैं। ऐसे में इमाम सज्जाद क्या कह रहे हैं? बेटा बाक़िर मुझे जल्दी बिस्तर से उतारो और मुझे जमीन पर लेटा दो, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। इमाम बाक़िर आगे बढ़े, बाबा आपका बदन इस काबिल नहीं है, आप नहीं फैला तो वहाँ एक कमजोर है, मरीज है। बाबा आप बिस्तर पर हैं, आपको आराम मिलेगा। बाबा ये कैसी फरमाइश है बाबा, मैं कैसे आपको जमीन पर लेटा दूँ? कहा नहीं मेरे लाल जल्दी करो। बिलाखिर हुक्म इमाम जल्दी से एक चटाई लाई गई, वही तख्त के बराबर में नीचे चटाई बिछाया। इमाम बाक़िर ने कोई कपड़ा लगाया और उसके बाद बाप को उठा करके तख्त से उस चटाई के ऊपर लेटा दिया। अब सोचे कि बिल्कुल आखिरी लम्हात है, इसमें इंसान किस गफलत के आदम में होता है। थोड़ी देर के बाद इमाम सज्जाद ने फिर आंखें खोली, महसूस कर लिया कि मेरा बदन चटाई पे है, मेरा बदन किसी कपड़े पे है। फिर करीब बोला, बाक़िर मैंने आपसे क्या कहा, मुझे जमीन पे लेटा दो। अब इमाम बाक़िर फूट फूट के रोने लगे, बाबा मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि मेरा बाप वक्त आखिर जमीन के ऊपर लेटा हो, मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकता, तो ये कैसे अंजाम दूं? मैं जुमला सुनेंगे आखिर बाबा वजह क्या है, इस वसीयत और इसकी ख्वाहिश की वजह क्या है? क्या मेरे लाल कुछ और नहीं, मुझे अपने बाबा का आखिरी वक्त याद आ रहा है। अरे मेरा बाबा जब दुनिया से गया था तो तपती हुई रेत के ऊपर मेरे बाप का जिस्म 3 रोज तक बेगोरो कफन पड़ा था। अरे अभी मैं अपने बाबा का सामना करूंगा, मैं कैसे बाबा से आंखें मिलाऊंगा? मेरा बाप तो इस जमीन के ऊपर बगैर कफन के उसका जिस्म पड़ा रहा और मेरा बदन बिस्तर के ऊपर रहे, लिहाजा जल्दी से मुझे जमीन पे लिटा दो। अब जाहिर है कि जब करबला का हवाला दिया, इमाम बाक़िर ने जल्दी से बाप के जिस्म को उठाया, चटाई हटा दी गई, सारे बिस्तर हटा दिए गए। अब जमीन के ऊपर इमाम सज्जाद को लिटा दिया गया और 2 फितरे और सुने, मसाइब तमाम हो रहा है। थोड़ी देर के बाद चंद हिचकियां ली और इमाम सज्जाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। तवज्जो करिएगा, इमाम बाक़िर के लिए सब जरूर है मगर कम से कम उतना सख्त नहीं है जितना सख्त करबला में सैयद सज्जाद के लिए था। क्यों? इसलिए कि मदीना है, यहाँ गुस्ल दिया जाएगा, यहाँ कफन पहनाया जाएगा, यहाँ इज्जत के साथ जनाजा उठेगा, यहाँ लोग नमाज पढ़ेंगे और ये सब कुछ हुआ। हाँ, एक पर्दा हायर किया गया, पानी का एहतमाम किया गया,
फिर इमाम के जिस्म को एक तख्त के ऊपर ले जा करके रखा गया। इमाम बाकिर ने कहा बाकी लोग हट जाएं, ये इमाम मासूम का गुस्ल है, इसको सिर्फ मासूम अंजाम दे सकता है। इमाम बाकिर पर्दे के अंदर जाते हैं। अच्छा, तारीख ने लिखा अभी गए थे, चंद लम्हे गुजरे कि एक मतलब इमाम बाकिर चीखते हुए बाहर आ गए, चीखते हुए बाहर आ गए। क्या हुआ? लोग घबरा गए, खैरियत तो है? हाँ तो ये तारीख चली आ रही है इस घराने की। तीसरा मौका है ये कि जब किसी को गुस्ल दिया जा रहा है और गुस्ल देने वाला चीख करके रोया है। पहला मौका याद दिलाऊं आपको, पहला मौका वो है कि जब अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा को गुस्ल दे रहे हैं, गुस्ल देते देते अचानक चीख करके रोए। जब इमाम बाहर आए तो सलमान ने पूछा मौला आपसे बड़ा कोई साबिर नहीं, आखिर कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से आप चीख पड़े? जनाब सलमान के गले में बाहें डाल दी। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं सलमान, अरे जब मैंने लिबास हटाया फातिमा की पसलियां टूटी हुई थी, मगर कभी फातिमा ने मुझसे शिकायत नहीं की। ये पहला मौका था जब गुस्ल देने वाला चीख करके रोया। दूसरा मौका याद दिलाऊं आपको, अरे जिंदाने शाम में एक बच्ची इस दुनिया से रुखसत हुई है, गस्साला बुलाई गई है, और वो गुस्ल देने के लिए जब पर्दे के पीछे गई, थोड़ी देर के बाद चीखती हुई बाहर आई। जनाब ज़ैनब से कहती है बीबी ये बताओ तुम्हारी बच्ची किस बीमारी में मुब्तला थी? ज़ैनब कहती नहीं मेरी बच्ची किसी बीमारी में मुब्तला नहीं थी। कहने नहीं आपकी बच्ची मरीजा थी। कहने नहीं मेरी बच्ची मरीज नहीं थी। कहे बीबी क्यों पूछ रही हो? ज़ैनब पूछती आखिर वजह क्या है, क्यों कह रही हो कि मेरी बच्ची बीमार थी? कहे बीबी जब मैं गुस्ल देने के लिए कुर्ता उतारना चाहती हूँ तो उसके कुर्ते के साथ उसके बदन की खाल भी उखड़ रही है, ऐसा लगता है कि बदन से जिस्म से लिबास चिपक गया है। ज़ैनब कहती नहीं नहीं मेरी सकीना मरीज नहीं थी, बल्कि कूफा शाम के बाजारों में इतने ताजियाने पड़े हैं कि बदन से लिबास चिपक गया है। ये दूसरा मौका था। ये तीसरा मौका है अजीजों, जब मदीने में इमाम बाकिर इमाम सज्जाद को गुस्ल दे रहे हैं और देते देते अचानक चीखे। अब जो बाहर आए लोगों ने पूछा मौला अरे आपने इतनी मुसीबतें देखी सब्र किया, आप भी तो करबला में रहे हैं, आपने भी अज़ियतें बर्दाश्त की है, आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत थी कि जिसने आपको चीखने पे मजबूर कर दिया? जुमला सुनेंगे। 34 साल गुजर चुके हैं करबला को जब इमाम सज्जाद इस दुनिया से जा रहे हैं। मैं एक मरतबा चीख के इमाम बाकिर ने गले में बाहें डाली। अरे गजब हो गया, जब मैंने जिस्म से कुर्ता हटाया तो अभी तक पुष्ट पे ताजियानों के निशान, पिंडलियों से गोश्त गायब, हड्डियां नजर आ रही है। हाय मेरा बाबा, उसने कभी अपनी अज़ियत के लिए हमसे कोई शिकवा न किया, हमेशा करबला वालों का गम मनाते रहे। कभी ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم